3 बजे की बुलेटिन की शुरुआत हम एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट इस वक्त जारी हो रही है, सीधे लिए चलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति रही। उसी के साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और अन्य केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति ने जिन नामों में मुहर लगाई उन नामों को अभी आपके समक्ष रखूंगा। मुख्य रूप से तमिलनाडु, केरल, असम और पश्चिम बंगाल, इन 4 राज्यों के बारे में सूची अभी आपके समक्ष पढ़ूंगा। So far as Tamil Nadu is concerned, the BJP is contesting as an NDA partner and will be contesting in 20 assembly constituencies. And these 20 assembly constituencies, they are spread over all the regions of Tamil Nadu. Our very dynamic State President, Dr. L. Murugan, he will be contesting from Dharapuram, the SC constituency. Our senior leader and ex-National Secretary, S. Raja, will contest from Karaikudi. Yes. Senior leader, Mr. M.R. Gandhi, will contest from Nagarkol. That is in Kanyakumari Lok Sabha constituency. An IPS officer, Sri K. Annamalai, will be contesting from Arwa Kurchi. He will be contesting from there. And BJP National Mahila Morcha President, a very dynamic leader, Srimati Banati Srinivasan, she will be contesting from Coimbatore South. Yes, very famous actress, you all know, Srimati Khushbu Sundar will contest from Thousand Lights, Chennai. Yes, in Chennai. And we are confident that we are going to form, the NDA is going to form the government with a full majority in Tamil Nadu. And on my right, on my left side, M.S. Home, who is also election in charge for the Tamil Nadu, he will say few words. Friends, ANNA-DMK is contesting 178 seats. PMK is contesting 23 seats. BJP 20. Former Union Minister G.K. Vasan, son of Congress Party Senior Leader Mupanar. TMC, they are contesting 6 seats. The symbol of 2 leaves, ANNA-DMK. Remaining 7 seats, ANNA-DMK and NDA, we are giving to smaller parties. That also they contest on 2 leaves symbol. There is a lot of change compared to the 2019 Parliament elections in Tamil Nadu. There is a wave in favor of DMK at that time. After 2 years, today there is a Tamil Nadu situation, total different in these elections. Narendra Modi ji, under leadership of in Tamil Nadu, last 2 years,
In COVID also, we did a lot of developmental activity. Tamil Nadu Chief Minister, Honorable Pannir Selvam ji also, he established his name as a good Chief Minister, as a good administrator, and he given a stable government, good governments, particularly law and order, in agriculture sector, in the industrial sector, there is a lot of development. Sri Ashok Lahiri, eminent economist, everyone knows him, very popular person. दूसरा उसी के साथ वेरी सीनियर लीडर, बहुत ही सीनियर व्यक्ति हैं राजनीति में, जो ममता बनर्जी की पार्टी से त्याग पत्र दे के आए थे, ऐसे राजीव बनर्जी, वह जोमजूर से चुनाव लड़ेंगे। डोमजूर, यस, बंगाली में डोमजूर से चुनाव लड़ेंगे और बहुत ही प्रोमिनेंट वहां के मिनिस्टर थे टीएमसी में, छोड़ करके मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। उसी प्रकार से जो रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, यह चुनाव लड़ेंगे सिंगूर से। यस, अभी सांसद, राज्यसभा के सांसद श्री स्वपन दास गुप्ता, eminent academician, journalist also, Sri Sapan Das Gupta will contest from Charokeswar, हिंदी में तारकेश्वर समझिए, बंगाली में तारकेश्वर, TARAKESSWAR, तारकेश्वर। अलीपुर द्वार, ठीक है। नाउ अभी आगे सुनो भैया, तब तो जो अभी के सांसद नीतीश निशित प्रमाणिक जी, जो अभी सांसद हैं, वह चुनाव लड़ेंगे दिनहाटा से। दिनहाटा सांसद हैं, दिनहाटा से चुनाव लड़ेंगे और बहुत ही फेमस, जिसे गायक कहते हैं, उसी के साथ साथ अभी केंद्रीय मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो जी चुनाव लड़ेंगे चंडीताला से। चंडीताला बाबुल सुप्रियो जी चंडीताला से लड़ेंगे। चंडीताला गौड़ा क्या? पढ़ो। और फिल्म एक्ट्रेस चंडीताला से जॉर्ज दासगुप्ता, टालीगंज से है शायद, टालीगंज से बाबुल सुप्रियो। सॉरी, दोबारा करेक्ट कर लेते हैं। आई एम सॉरी, टाइपिंग कोई मिस्टेक हुई है। तो श्री बाबुल सुप्रियो जी, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वह चुनाव लड़ेंगे टालीगंज से। टालीगंज TOLLYGANG, टॉलीगंज। और चंडीताला से बहुत ही प्रसिद्ध जो एक्टर हैं, श्री यश दासगुप्ता चुनाव लड़ेंगे। यश दासगुप्ता, पॉपुलर सिनेमा एक्टर। अच्छा, और बहुत ही फेमस फिल्म एक्ट्रेस श्रीमती पायल सरकार, वह चुनाव लड़ेंगी बेहाला से। बेहाल होता ना, बेहाला ईस्ट, बेहाला ईस्ट। डॉक्टर इंद्रनील खान, बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर हैं,
यह चुनाव लड़ेंगे कस्बा से डॉक्टर इंद्रनील खान। हाँ, इंद्रनील खान, फेमस डॉक्टर, ही विल कंटेस्ट फ्रॉम कस्बा। और अनदर फिल्म एक्ट्रेस, बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म एक्ट्रेस है श्रीमती तनुश्री चक्रवर्ती, वह श्यामपुर से चुनाव लड़ेंगी। हावड़ा श्यामपुर। हावड़ा श्यामपुर। हाँ। और लॉकेट चटर्जी सांसद हैं भी, लॉकेट चटर्जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वह चुनाव लड़ेंगी चुचुरा से, CHURA। हाँ, चुनचुरा बोलो, चुचुरा, बंगाल में चुचुरा, CHUNCHURA। अनदर इसका एमिनेंट पत्रकार इसका रंतिदेव सेनगुप्ता, हावड़ा दक्षिण। इसका पल और अनदर श्रीमती अंजन बासु, अंजना बासु विल कंटेस्ट फ्रॉम सोनपुर साउथ, सोनारपुर साउथ से लड़ेंगे चुनाव अंजना बासु, सोनारपुर साउथ। क्या लगता है? सोनारपुर साउथ। रंतिदेव सेनगुप्ता। और हावड़ा दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है रंतिदेव सेन गुप्ता। एमिनेंट पत्रकार। ये बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार हैं, रंतिदेव सेन गुप्ता, बहुत। हाँ, तो इस प्रकार से मित्रों, हमने आपको आज तमिलनाडु, केरल और असम, पश्चिम बंगाल के नामों की घोषणा की है। जो केंद्रीय चुनाव समिति ने उनके नाम का अनुमोदन किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान सब लोग खुशहाल हैं, प्रसन्न हैं और सभी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाह रहे हैं और देंगे भी। अब हमारे साथ केंद्रीय मंत्री बैठी हैं जो पश्चिम बंगाल की बहुत बड़ी प्रोमिनेंट लीडर हैं, वह आप सबके बीच में कुछ पश्चिम बंगाल के बारे में बताएंगे। नमस्कार। पहले मैं बांग्ला में बोलना चाहती हूँ, बाद में अगर आपका कोई सवाल है तो मैं हिंदी में बता दूंगी। হয়ে যাবে, খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। তৃতীয় এবং চতুর্থ পর্যায়ের আমাদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। আপনারা জানেন পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন এত গরমাগরম। बीजेपी ने यहां अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इसमें कई सारे सांसदों के नाम भी हैं। बाबुल सुप्रियो टॉलीगंज से चुनाव लड़ेंगे, जिनके बारे में कहा जा रहा था, पहले भी उनके नाम चर्चा में आए थे, और ये था कि बीजेपी अब अपने कुछ सांसदों को भी विधानसभा चुनाव में उतार सकती है, जिसमें नाम आया बाबुल सुप्रियो का। लेकिन वो टॉलीगंज से चुनाव लड़ेंगे। वही टॉलीगंज है जहां से, याद कीजिए, ममता बनर्जी ने मजाक में कहा था कि मैं यहां से चुनाव लड़ सकती हूं। तब भी ऐसा लग रहा था कि ममता बनर्जी ऐसा क्यों कह रही हैं कि वो टॉलीगंज से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट बंगाल के लिए, हालांकि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, लेकिन ये बंगाल के हम आपको उम्मीदवार दिखा रहे हैं जिनकी बस अब से कुछ देर पहले बीजेपी ने घोषणा की है। और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की नई लिस्ट में कई जाने माने नाम हैं, इनमें बाबुल सुप्रियो का नाम है। बाबुल सुप्रियो इस बार चुनाव लड़ेंगे। सुप्रदास गुप्ता भी चुनाव लड़ेंगे, उन्हें भी टिकट दिया गया है। लॉकेट चटर्जी भी चुनाव लड़ेंगे, यानी कि सांसदों को भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उतारा है। तारकेश्वर से स्वप्नदास गुप्ता चुनाव लड़ेंगे। सांसद निशित प्रामाणिक दिनहाटा से चुनाव लड़ेंगे और बाबुल सुप्रियो भी चुनाव लड़ रहे हैं टॉलीगंज से। तो ये वो सांसद हैं जो विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से उतर रहे हैं। मतलब साफ है कि बीजेपी ने अपनी रणनीति यहां पर किसी भी कीमत पर हल्के में नहीं ले रही है। बीजेपी
न सिर्फ आक्रामक चुनाव प्रचार कर रही है बल्कि टिकट बंटवारे को लेकर भी बीजेपी ने यहां एक रणनीति के तहत अपने सांसदों को चुनाव मैदान में उतार दिया है और उन उम्मीदवारों के लिस्ट की घोषणा बस अब से कुछ देर पहले हुई है और लगातार बीजेपी बंगाल पर फोकस करते हुए इस वक्त ये वो उम्मीदवार हैं बीजेपी के जिनके नाम पर घोषणा हुई। हालांकि दूसरी लिस्ट से पहले न सिर्फ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर एक बैठक हुई और उसके बाद सीईसी की बैठक में जिसमें प्रधानमंत्री कल मौजूद थे। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु लगातार बीजेपी कवर करते हैं, बीजेपी पर नजर रखते हैं। हिमांशु, सांसदों को विधानसभा का टिकट देने के पीछे बीजेपी की क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, बिल्कुल सांसदों को जो टिकट देने की रणनीति है बीजेपी की, वो कोई भी सीट ऐसी नहीं छोड़नी चाहती जिस पर हार देखने पड़े और इसीलिए अपने 3 सांसदों, माफ कीजिएगा 2 सांसद और 1 मंत्री को उतारा है। बाबुल सुप्रियो जो है वो टोलीगंज से लड़ेंगे, लॉकेट चैटर्जी जो है वो मैदान में है, स्वपन दास गुप्ता मैदान में है। तो ये कहा जा सकता है कि सांसदों को उतारकर बीजेपी मजबूती के साथ ही नहीं बल्कि जीतने के इरादे के साथ जो है इस चुनाव में जा रही है और वो इस बार कोई मौका शहीद नहीं छोड़ना चाहती। आजादी के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल के अंदर जो है वो बीजेपी का कमल। हिमांशु, ये बताइए, सांसदों को टिकट देना कहीं टीएमसी यह आरोप तो नहीं लगा देगी कि इनके पास उम्मीदवार ही नहीं है? देखिए सईद, क्योंकि बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी का बहुत जनाधार नहीं रहा है। 2014 से पहले 16 में बीजेपी ने परफॉर्म अच्छा किया था, 10% मत लिए थे। 2019 उसके बाद जो 2019 का चुनाव हुआ था, बीजेपी ने वहां पर टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट से आए लोगों को पार्टी में शामिल किया और उसके बाद जो है वो 18 लोकसभा सीटें जीते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये देखना है कि बाहर से आए लोग जो हैं उनको लाया जाए और बीजेपी के पास सच में उम्मीदवार तो हैं, लेकिन जीतने के जो जीत सकते हैं उन्हीं को वो मैदान में उतार रही है। ये नहीं कि कोई भाई भतीजावाद हो, इन सब चीजों से बचकर बंगाल को जीतना चाहती है और इसीलिए इन सभी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जा रहा है। बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु मिश्रा। हिमांशु हमारे संवाददाता दिल्ली से जानकारी दे रहे थे। इंद्रजीत कुंडू सीधे हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, बाबुल सुप्रियो को टिकट दिया गया है, 3 सांसदों को यहां पर टिकट दिया गया है, ये क्या अर्थ हुआ कि विधानसभा में अपने सांसदों को उतार रही है बीजेपी? कैसे समझें इसको हम? जी हाँ, देखिए बिल्कुल ये एक मैसेज जरूर है तो बीजेपी की ओर से कि जो सांसद चुन के आए हैं 2019 में, उनको फिर से इस बार टिकट दिया जा रहा है विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए। इसी से एक ही मैसेज जाता है कि बीजेपी कितना सीरियसली इस लड़ाई को ले रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास उम्मीदवारों की कमी है। स्पेशली कौन उसके चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट होंगे, चीफ मिनिस्टर पद के कौन दावेदार होंगे, इसको लेकर बहुत ज्यादा अटकलें लगाई जा रही है। अभी तक बीजेपी ने यह साफ नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से पहले कहा जा रहा था कि शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से लड़ेंगे या नहीं, वो फैसला बीजेपी ने लिया कि हाँ, शुभेंदु अधिकारी जरूर नंदीग्राम से लड़ेंगे। अब बाबुल सुप्रियो को भी टिकट दिया गया है, वो टोलीगंज से लड़ेंगे। इससे संकेत साफ है, ये लड़ाई बीजेपी लड़ रही है और पूरे चुनौती के साथ तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ। अच्छा इंद्रजीत, ये बताइए, बीजेपी पश्चिम बंगाल यानी कि बीजेपी राज्य अध्यक्ष दिलीप घोष भी सांसद हैं, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल, अभी तक दिलीप घोष का नाम ऐलान नहीं किया गया है। ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त उसी पर लेके चर्चा हो रही है पश्चिम बंगाल की राजनीति में, क्योंकि कहा जा रहा था कि हो सकता है कि खड़गपुर सीट से दिलीप घोष को उम्मीदवार घोषित किया जाए, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ है। और जितने भी लोग अभी तक बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टरियल उम्मीदवार है जिनके नामों पर चर्चा है, उनमें एक है स्वपन दास गुप्ता, उनको टिकट दी गई है। बाबुल सुप्रियो, अब उनको टिकट दी गई है। तो निशित प्रामाणिक जो है और एक एमपी है, उनको भी इस बार टिकट दी गई है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2019 में चुन के आए हैं लोकसभा में, लेकिन उन सबको टिकट दिया गया है। इसका मतलब यह है कि फिर से वहां पे बाई इलेक्शन होगा, फिर से वहां पे चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि जो उनके दमदार उम्मीदवार है, जो जीत के आए हैं, भले ही वो जीत चुके हैं एक बार 2019 में, उनको फिर से लड़ाई के मैदान में उतरना होगा और अपने आप को साबित करना होगा।
ये इंद्रजीत, जो सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा है, बीजेपी ने टिकट दिया है, आपकी त्वरित प्रतिक्रिया जैसे ही आपने सुना, आपके मन में क्या आया? कहां जा रहे हैं इंद्रजीत? देखिए, ये इस पर चर्चा जरूर हो रही थी। हम कोशिश करेंगे, क्योंकि तृणमूल का जो सभा है वो खत्म हो चुका है, और हम कोशिश करेंगे तृणमूल के जो नेता हैं जो मंच से उतर रहे हैं उनसे एक बार ये पूछने की कि किस तरह से वो देखते हैं इसको, क्योंकि बाबुल सुप्रियो सांसद है, जीत चुके हैं, आसनसोल से हाई प्रोफाइल कैंडिडेट है, उनको फिर से चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। निशीथ प्रामाणिक कूचबिहार से यंग उम्मीदवार है, वो जीत के आए थे, तृणमूल में थे, बाद में बीजेपी ज्वाइन किए, उनको फिर से उतारा जा रहा है। स्वपन दासगुप्ता राज्यसभा के सांसद है बीजेपी के, उनको भी टिकट दिया जा रहा है। तो जिस तरह से जो बीजेपी के जो हेवीवेट नेता है, उनको फिर से एक बार चुनावी मैदान में उतर के बीजेपी जरूर ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से वो इस लड़ाई को 2021 के इस चुनाव को देखती है। काफी हाई प्रोफाइल प्रेस्टीज बैटल है, और दूर में हम देख सकते हैं यहाँ पे तृणमूल के मदन मित्रा है। हम कोशिश करेंगे उनसे एक बार एक रिएक्शन लेने की। सही बात कीजिए। एक सेकेंड। इंद्रजीत कुंडू हमारे संवाददाता बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं इंद्रजीत टीएमसी नेताओं से बात करने की। हाँ, बात कीजिए। मदन मित्रा हमारे साथ। मदन दा, सबसे पहले आपको ये पूछना चाहेंगे, बीजेपी के उम्मीदवार का लिस्ट आया है, जितने भी हाई प्रोफाइल कैंडिडेट थे जिन्होंने 2019 के चुनाव जीता है, जैसे बाबुल सुप्रियो, उनको टालीगंज से फील्ड किया गया है, स्वपन दासगुप्ता को टिकट दिया गया है, निशीथ प्रामाणिक को, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बंगाल की नया स्लोगान है, अमित मोदी कांदबे जाबे शेषेर खेला सेदिन हबे। ओ लवली। अब सुनिए, मुझे किसी ने पूछा है कि जसवंत सिन्हा क्यों आ रहे हैं, वो बैरागा तो है। नहीं, बैरागा तो नहीं है, वो तो बंगाल के लिए नहीं। 3 बार का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बन गई। अभी तो तृणमूल का स्लोगन है, चलो दिल्ली चलो। दिल्ली का आदमी जरूरत है ना, ये लोग तो दिल्ली के लिए ले रहा है। आप गाना गा रहे हैं, बाबुल सुप्रियो भी गायक है, वो फिर से टॉलीगंज में लड़ रहे हैं। टॉलीगंज है जो सिनेमा का, बंगाल सिनेमा का सेंटर है। शायद नायक, पहले गायक था, अभी नायक होने का शायद उसका कोई माने डिजायर हुआ होगा। लेकिन अभी ये माटी जो है ना, बंगाल की माटी बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। इसमें ज्यादा खेलने को मत करो, ज्यादा खेलने को कोशिश मत करो, क्योंकि इस बार जो खेला होगा ना, ये आखिरी खेला। आप एक बात सुना था ना शोले का, ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। ये बताइए, क्या इससे मैसेज क्या है? जो लोग जीत के आए हैं 2019 में लोकसभा में, उनको फिर से यहाँ पे उम्मीदवार बनाया जाए, मैसेज जाएगा तो जूता से पिटाएगा, क्योंकि जो लोग जीता था 5 साल पहले भगाता है, माने जाने से जूता से पिटाएगा। आप कह रहे हैं आसनसोल नहीं जा पाएंगे बाबुल सुप्रियो, डर के मारे टालीगंज में आ गए। तो क्यों आया? वो क्या है, कौन है वो? चलिए ना, एक साथ बोलिए ना, मदन मित्रों के साथ हटेंगे पैदल। चलिए, हाजरा में बाबुल भी पैदल जाएगा, मैं भी पैदल जाएगा। चलिए ना, किसका साथ कितना सेल्फी आता है भाई? चलिए। तो खेला হবে शेषेर खेला হবে, ये होगा आखिरी गेम, आखिरी। तो बिल्कुल मदन मित्रा जो अपने स्टाइल में जिस तरह से बात करते हैं, आप जानते हैं मदन मित्रा का अंदाज अलग है। पश्चिम बंगाल के राजनीति में इंद्रजीत बोले क्या, एक नया नारा दिया, क्या नारा लगा रहे थे मदन मित्रा? मदन मित्रा अपने नारे, अपने स्लोगन के लिए जाने जाते हैं, उनका एक अलग ही अंदाज होता है। वो कह रहे हैं खेला होबे, शोले का डायलॉग दे रहे थे। तो आज ममता बनर्जी जब खुद स्टेज पे थी, उन्होंने भी उसी अंदाज में कहा था खेला होबे। और पूरे इस वक्त तृणमूल के जो सोशल मीडिया कैंपेन चल रही है, वो यही चल रही है कि भांगा पाए खेला होबे। इसका मतलब है कि टूटे हुए पैर में ही हम लोग खेलेंगे, और यही शायद मैसेज तृणमूल के हर एक नेता देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ टिप्पणी आप देख लीजिए, जब हमने पूछा कि बीजेपी के जितने भी उम्मीदवार है जो जीत के आए हैं 2019 में, उनको फिर से टिकट दिया जा रहा है, तो मदन मित्रा का कहना है बाबुल सुप्रियो तो आसनसोल में वापस नहीं जा पाएंगे, क्योंकि 2019 से 2021 तक उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, और यही कारण है आसनसोल से भाग के अब वो कोलकाता के टालीगंज से उम्मीदवार बनने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा इंद्रजीत,
ये बताइए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हाई प्रोफाइल नाम है, बड़े बड़े नाम हैं, सांसद हैं, तो बीजेपी कोई भी खतरा मोल लेना नहीं चाहती और अपने स्थापित चेहरों को चुनाव में उतारकर सीधे सीधे फायदा लेना चाहती है और उसे फायदा मिलेगा इसका? बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल यही कारण है क्योंकि बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से बार बार ये जो आक्रमण हो रहा है बीजेपी के ऊपर कि उनके पास उम्मीदवारों की कमी है, उनके पास कैंडिडेट नहीं है, किसको वो खड़ा करेंगे। बार बार ये कहा जा रहा है कि बाहरी है, बाहर से लोगों को लाके यहाँ पे लड़ना पड़ रहा है क्योंकि कैंपेन में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री से शुरू करके गृह मंत्री सब आ रहे हैं, उन सबको बाहरी करार दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बंगाल के चेहरे जो लोग एक बार जीत के आए, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टाइम एंड टेस्टेड, टायर्ड एंड टेस्टेड, तो उन चेहरों को फिर से एक बार उम्मीदवार करके बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है कि उनकी भी बेंच स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। ट्राइड एंड टेस्टेड वाली जो बात है, तो इसमें जो लोग शुभेंदु अधिकारी जैसे जो लोग हैं, जो टीएमसी के बड़े नेता हैं, छोड़कर बीजेपी में आए हैं, इसका बंगाल की जनता पर क्या असर पड़ेगा इंद्रजीत? देखिए, शुभेंदु अधिकारी के नामों पर बहुत ज्यादा चर्चा तो जरूर था और अगर हम बीजेपी के उम्मीदवार लिस्ट अभी तक देखें तो उनमें से सबसे हाई प्रोफाइल है शुभेंदु अधिकारी क्योंकि वो ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्योंकि तृणमूल का लिस्ट आने से बहुत दिन पहले ममता बनर्जी ने खुद घोषणा किया था कि वो खुद नंदीग्राम से लड़ेंगी, तो ये चैलेंज, ओपन चैलेंज दे दिया गया था बीजेपी को और शुभेंदु अधिकारी ने उसको एक्सेप्ट किया और बीजेपी के ओर से उनको उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन दूसरे जितने भी कैंडिडेट हैं, आज जैसा कि लिस्ट अभी आ रहा है और मैं देख पा रहा हूं, राजीव बैनर्जी जो ममता के मंत्री थे अब बीजेपी में जुड़ गए हैं, उनको डोमजूर सीट दिया गया है। डोमजूर बल्कि उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र है हावड़ा में, जहां से वो 2016 के चुनाव जीत कर आए थे। लेकिन इस बार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद राजीव बैनर्जी को डोमजूर की सीट से टिकट ना मिले तृणमूल में, तो राजीव बैनर्जी बीजेपी चले गए और आज उनको डोमजूर से सीट मिला है। रविंद्रनाथ भट्टाचार्य 80 साल से ज्यादा उनका उम्र है, वो सिंगूर से विधायक थे तृणमूल कांग्रेस के। बहुत दिनों से ये कहा जा रहा था कि वो बागी विधायक है, हमें आपको रोकना पड़ रहा है, समय की थोड़ी सी कमी, हम दोबारा आपके पास आएंगे। बीजेपी ने अपने 3 मौजूदा सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतार दिया है, दूसरी लिस्ट जारी कर दी।